of conservation of momentum momentum from Newton's third law of motion. Law of conservation of linear momentum from Newton's third law of motion. Suppose that we have the two bodies. Body A having mass and another body B having mass m2. This body is moving with the velocity v1. This body is moving with the velocity v2. This is the situation of this collision. Before collision. When the velocity v1 is greater than v2, then these two bodies collide. सर लीनियर मोमेंटम ठीक से समझ नहीं आया था। सर को आवाज नहीं जा रही है उनकी। ये है दिस इज रिंग कॉलिजन। कॉल करके बोलो। And after collision, these two bodies moves as earlier velocity. सर एक बार चैट बॉक्स देखिए ना। ये सुनाई देगा सर? हम ट्राई कर रहे हैं बस। सर को बोलेंगे नहीं तो सर को पता कैसे चलेगा? सुनाएंगे वैसे भी नहीं पता चलेगा। इसे समझिए कि these are two body A and B having mass m1 and m2 respectively, moving with velocity v1 and v2 on the x-axis. When velocity of first body is greater than the velocity of second body, then collide to each other. During collision, both the bodies will exert a force to each other. That means on this body A, the body B will exert a force like that. That is AB, force act on A with respect to like that. On the second body, this body exert a force in FBA. After collision, it moves with the velocity v1 and v2 along the same axis. This is a इसी को लैंग्वेज लिख लीजिए। Consider two bodies A and B having mass m1 and m2 are moving with the velocity
V1 and V2 respectively. If V1 is greater than V2, they will collide to each other. And after collision, इसको U1 U2 दो initial because U2 क्योंकि उसका वहां भी V1 V2 लिखे हुए हैं U1 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 is greater than U2, they will collide to each other, and after collision, it moves with the velocity V1 and V2 respectively. ठीक है? Consider two bodies, body A and this is a two body A and B having M1 and M2. Moving with the velocity, initial velocity U1 and U2. U and U2 are the initial velocity. If speed of first body is greater than second one, then they will collide to each other. After collision, both the body will exactly move. And after collision, it moves with the velocity V1 and V2 respectively in the same direction. In same direction. Total linear momentum of the system क्या हो जाएगा M1 U प्लस M2 U2 क्यों ऐसा लिखा क्योंकि मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी होता है ये बिफोर कॉलिजन है ये बिफोर कॉलिजन and after collision M1 V1 plus M2 V2 so chain momentum of the body A change in momentum of body A after collision equal to M1 V1 minus M1 U1 उसी तरह से of body B हो जाएगा M2 V2 सर minus M2 U1 during the collision
in the collision. अब देखो ये बॉडी इस पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ये बॉडी इस पे एक्सर्ट कर रहा है. ड्यूरिंग द बॉडी both body will exert a force. According to Newton's third law of motion, Fa equal to minus Fab. यहाँ तक हो गया है? नो सर रुकिए. नो No, सर sir, अभी रुक जाइए चाहिए. सर, नहीं हुआ है सर, अभी नहीं हुआ है सर, रुकिए सर. Okay. Let delta t be the time for which collision takes place. The impulse on body A equal to A delta t, and on body B F A delta t. Impulse equal to change momentum होता है, change linear momentum. सर होता है. F A B delta t equal to M1 V1 minus M1 U लिखेंगे. Delta t equal to M2 V2 minus M2 U. Put its value in 1. FBA हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई? M2 V2 minus M2 U2 equal to minus M1 V1 M2 V2 minus M2 U2 equal to M1 V1
m1u1, that means ये हो गया m2v2 minus m2u2 equal to minus m1v1 plus m1u1. अब देखो m1v1 plus m2v2 equal to 1u1 plus m2u2 लिख सकते हैं ना वो। इसका मतलब क्या हुआ? before collision equal to after collision. This is of conservation of linear momentum. इसको ऐसा लिए m1u1 plus m2u2 equal to m1v1 plus m2 before collision equal to after. This is the law of conservation. Momentum. कहाँ पे निर्माया? लास्ट वाला में। लास्ट में क्या है? देखो यहाँ से आते हैं, यहाँ से आ रहे हैं, या यहाँ से स्टार्टिंग से डेल्टा। अब ये जो बॉडी कोलाइड, ये बॉडी जो था हमारा, ये बॉडी कोलाइड किया, तो सपोज दैट टी विद द टाइम टेकन, जहाँ पे किया तो इम्पल्स, एक दूसरे बॉडी इम्पल्स लगा, इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम होता है, तो एफ ए डेल्टा टी कर दिया। उसी तरह से पे दिए डेल्टा दिया, इम्पल्स इक्वल टू और मोमेंटम इज आल्सो इम्पल्स, इसको हम लोग इम्पल्स हम लोग पढ़े, आप नोट करके देख लीजिए। चेंज इन मोमेंटम इज आल्सो नोन एज द इम्पल्स। यानी इम्पल्स अगर हम लोग बॉडी कर लेंगे ऐसे वी डेल्टा m1 चेंज इन लिनियर मोमेंटम m1 v माइनस m1 u1, ये कैसे लिखे? मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी होता है। हम चेंज निकालना है, यानी फाइनल माइनस इनिशियल निकालना है। m1 v1 या फाइनल, u1 हो गया इनिशियल। उसी तरह सेकंड बॉडी दिया, ये इसको वैल्यू पुट कर दिया। इक्वेशन 1 था हमारा FAB डेल्टी FAB इक्वल टू माइनस FBA, इधर FBA इक्वल टू FAB, ये इक्वेशन। तो FB डेल्टी तो दोनों में आएगा, डेल्टी दोनों कैंसिल हो गया, FB इक्वल टू दिस वन, ये कर दिया, डेल्टा टी दोनों का कैंसिल। इसको सॉल्व कर दे तो ये, अब ये देखो u1 और m22, u1 यहाँ पे क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है, यानी मोमेंटम का ये इनिशियल मोमेंटम है। v1 है फाइनल वेलोसिटी, दैट मींस ये क्या है? फाइनल मोमेंटम है, यानी इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम। एक तरह से बोल सकते हैं हम लोग भाई, यानी बिफोर कॉलिजन इक्वल मोमेंटम, कॉलिजन ऑफ मोमेंटम कर दो, बिफोर कॉलिजन ऑफ मोमेंटम इक्वल टू आफ्टर कॉलिजन ऑफ मोमेंटम। ये conservation of linear momentum, if no external force acts on the total momentum of body will be
This is the law of observation. अभी समझ में आया तो पूछ सकते। क्या कहीं प्रॉब्लम है? हेलो सर आपको आवाज जा रही है हम लोग की? ओके रब कर रहे हैं। लो। जा ही नहीं रही है उनको आवाज तो। हेलो सर। नहीं जा रही है आवाज उनको। सर कंप्लीट है, इरेज कर दीजिए। ओके कंक्रीट फोर्स ऊपर देखने ऊपर नहीं दिख रहा है सर। सपोज दैट नहीं दिख रहा है। सर बोर्ड थोड़ा नीचे कीजिए ना प्लीज। सर ऊपर का नहीं दिख रहा है सर। अब सर को कॉल करके बोलो। सर को आवाज ही नहीं जा रहा है। नहीं जा रहा सर को आवाज। बोलते हैं द फोर्स passes through a common point. Two or more than two forces दिख रहा है। act on a common सर बोर्ड नीचे कीजिए ना थोड़ा सा सर। then जी सर टॉपिक क्या बोले थे? अब बोल रही हो सर थोड़ा बोर्ड नीचे करिए सर। हाँ सर थोड़ा सा बोर्ड नीचे कीजिए ना। नहीं दिख रहा है। सर कोई नंबर भेजो सर ना हमको सर। सुनाई नहीं दे रहा है। सर सर का नंबर उनको कॉल करो ना। रुको कॉल कर रहे, एक मिनट रुक जाओ। कोई कॉल करो तो भी सुनाई नहीं दे रहा है।
सर का नंबर बिजी बता रहा है। OA equal to F1, OB equal to F2, OC equal to F3। एक इक्वल एंड अपोजिट लाइन इस साइड ड्रॉ किए हैं, तो OC डैश इक्वल टू माइनस FD हो जाएगा। अब ये देखो, बाय मेकिंग पैरेललोग्राम, इसको बोल सकते हैं ना हम लोग भाई, OC डैश इक्वल टू OA प्लस OB, यानी माइनस F3 इक्वल टू F1 प्लस F2। सर बोर्ड थोड़ा नीचे लिया ना। यानी F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल टू 0। यही तो प्रूफ करना था हम लोग। फिर से समझिए, कंकरेंट फोर्सेस को बोलेंगे इफ टू और मोर देन टू फोर्सेस, इफ टू और मोर देन टू फोर्सेस एक्टिंग एट ए कॉमन पॉइंट, तो उसको बोलेंगे कंकरेंट फोर्स। तो इसके लिए इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या है? वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू 0। वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू 0, यानी उसी को हम लोग प्रूव करते हैं। देखो OA यहाँ F1 है, OB F2 है, OC F3 है। इस OC का अपोजिट OC डैश लिए हैं, यानी माइनस F3 हो जाएगा। बाय मेकिंग पैरेललोग्राम, OC डैश इक्वल टू F1 प्लस F2। यानी क्या होगा, बॉडी जो होगा वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो पूछिए। नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अभी आवाज बहुत अच्छी आ गई तुम्हारी, कंकरेंट समझ में आ गया ना बाबरे? यस सर। यस सर। यस सर, आ गया समझ में सर। कंकरेंट फोर्स समझ में गया, यस कंडीशन भी सर। समझ में आ गया। यस ओके, कर दे। यस सर। यस सर, कर दीजिए। ओके गुड। सर आवाज आ रही है? ये नेटवर्क के प्रॉब्लम कारण ही होता है, क्योंकि मेरी यहाँ से तो अब जा रही है, इधर का नेटवर्क सही है और का नेटवर्क प्रॉब्लम। जब आप करते फोन पे तो बिल्कुल उसी स्पीकर में मैं आवाज सुन रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है। स्पीकर का भी मेरा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता हेलो सर, आवाज आ रही है सर? स्पीकर मेरी आवाज नहीं आती। हेलो सर। तो आपकी आवाज तो स्पीकर बिल्कुल सही आ रही है। हेलो सर, आवाज आ रही है सर? हेलो सर, आवाज आ रही है? नेटवर्क का ही कहीं ना कहीं नहीं आ रही, नहीं आ हेलो रही। सर। आवाज आ रही है सर? सर वो नहीं आ रही इधर से आवाज, मेरी नहीं आ आवाज रही जा आवाज। रही है, दैट मींस इधर का नेटवर्क सर सही है। तुमको आवाज नहीं जा रही है? सर नहीं जा रही है। क्योंकि नेटवर्क कभी कभी सही है तो आपकी आवाज भी सही आ जाती है मेरे पास। सारे बच्चों का नहीं। नेटवर्क कनेक्शन थोड़ा खराब होगा। ओके, मेरा आवाज नहीं आ रही। नाउ नेक्स्ट टॉपिक,
फ्रिक्शन, फ्रिक्शन नॉट फ्रिक्शन। अपने आप में बहुत क्लियर है, ये टर्म ही बहुत क्लियर है। जो फ्रिक्शन है, बॉडी है, ये बॉडी मूव कर रहा है इस सरफेस। तो क्या ये सरफेस है, ये सरफेस पे इक्वल इन अपोजिट फोर्स लगा रहा है। तो दिस फेनोमेना इज कॉल्ड फ्रिक्शन। When body rolls over the surface of another body, a force comes to act to play oppose the motion। यानी ये बॉडी जो मूव कर रही है, एक फोर्स यहाँ पर प्ले कर रहा है जो इसको अपोज करता है, ठीक ना। तो दैट फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन। तो बहुत सिमिलरिटी है। जब हम जनरल मैकेनिज्म पढ़ते हैं तो वहां पर अपोज फोर्स जो आया उसको टर्म हम लोग से फ्रिक्शन। यही चीज हम लोग हाइड्रोडायनेमिक पढ़ते, फ्लूइड पढ़ते हैं। फ्लूइड जब पढ़ते हैं, अब फ्लूइड में भी अपोजिंग होता है, तो वहां पर हम लोग विस्कोसिटी बोलते हैं। जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं तो वहां भी जो अपोज करता है उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। यानी ये ऑल दिस जो है वो सिमिलर टर्म है, विस्कोसिटी एंड रेजिस्टेंस। जब जेन मैकेनिज्म हम पढ़ रहे हैं तो वहां पे टर्म आता है हमारा फ्रिक्शन। जब हम लोग हाइड्रोडायनेमिक यानी फ्लूइड की करते हैं तो वहां हमारा टॉप जो अपोज होता है उसको हम लोग बोलते हैं विस्कोसिटी।